plus the participants who are joining us online. And most importantly, the speaker for today's talk, Professor Dr. Mohit Gupta, who is also joining us. So thank you so much for joining us. And we can see that you are in your gear. You are in your medical gear. Yeah, I just came back from Cath Lab. Yeah, thank you so much. I see. So as you can well see, I'm sure all participants, that our speaker for today is a medical doctor. Nonetheless, he's a cardiologist, in fact. Nonetheless, in case you're wondering as to why how a cardiologist is here, and is he going to sort of talk to you about or consult you about, in any sense, consult you, that we might have any consultation with him on any heart related issues, then that's not the case, because our speaker today is someone who has been, in fact, working on marrying science and spiritualism. And I think they do sound, it does sound like an oxymoron, so to say, as to, juxtaposing these two words together, science and spiritualism. But he has been someone who's been practicing both. And when I say that, can I also mention that he's been practicing the Raja Yoga meditation and practicing Raja Yoga for more than 3 decades, in fact, close to 4 decades. But I think there are other things that are absolutely important for me to mention about him, which also gives us a sense of who he is, because he is not just a very serious practitioner and is not just known for his practice, but also his research in genetics, for which he has very recently in 2018, he was conferred with, he was awarded the Young Scientist Award for, as I mentioned, his research in genetics. Plus, in year 2018, again, he was awarded Excellence in Cardiology by the Ministry of Health and Family Welfare. And the previous award that I just mentioned about the Young Scientist Award was awarded by none other than our Vice President of India. So that gives us some sense, though this is just a very, very brief introduction to our very, very esteemed speaker, but this might have given us some sense of who we are going to listen to. And therefore, I am certainly looking forward to listen to him. And I'm sure I speak for others also when I say that we're looking forward to hear from you. And what is he going to talk about? He's going to talk about 7 ways, or 7 ways in which your life can be transformed forever. So, so Dr. Gupta, I'm certainly looking forward to transform my life. And if it can be done in through a talk, certainly it's something that I think to look forward to. So now I hand over the platform to you, sir. Thank you. Okay, thank you so much, everyone in Delhi University. Thank you so much, and thank you for this opportunity, wonderful opportunity. I hope my voice is clear, right? Yes, sir. Yeah. Is it good? And sorry for this costume. I just came back from Cath Lab, and I was given the time of 2:15, so it was really challenging if I had rushed home at that particular time. So let us start this wonderful journey. And today I'm going to talk about these 7 transformations that can change your life forever. Something which is very late. तो जिंदगी में किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन मजा तब है जब आपकी शख्सियत, आपके किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए। और ये बहुत जरूरी हो जाता है आजकल के प्लेटफॉर्म के अंदर, आजकल के जीवन के अंदर, क्योंकि वी आर अमैल्गमेशन ऑफ आवर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। और कितने सुंदर रूप से हम अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते हैं। उस बैलेंस को क्रिएट करके हम अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने पर्सनल सेल्फ को हम एक सुंदर कहानी ध्यान में आती है कि एक यंग लड़का बहुत अच्छी तीरंदाजी करता था, और तीरंदाजी करते करते वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बना। लेकिन as he was doing, he started getting, the feeling of pride in him. उसको अपने ऊपर अभिमान आने लगा, और अभिमान आता, लोगों को हराता और हराकर उनका उपहास करता। He used to make fun of them.
तो एक दिन एक व्यक्ति ने उन्हें बोला कि अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही अभिमान है तो क्यों नहीं तुम इस गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उस बुजुर्ग व्यक्ति को हरा कर दिखाओ। उसने कहा दैट्स नॉट एट ऑल अ बिग चैलेंज, आई कैन इजीली डू इट। तो गया, उस बुजुर्ग व्यक्ति को उसने ललकारा और कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ तीरंदाजी की प्रतियोगिता। तो उसने कहा बेटा मुझे हरा कर क्या करो। तो उस लड़के ने बोला कि लोग कहते हैं जब मैं आपको हराऊंगा ओनली देन आई विल बी लेबल्ड एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगा और उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चैलेंज को स्वीकारता हूँ। और ऐसा कहकर वो दोनों खुले मैदान में आ गए। वहां पर आया और वहां पर आकर उस लड़के ने अपना निशाना साधा एक्यूरेटली एक निशाने पर, दूसरा तीर लगाते हुए उस पुराने निशाने को भी उसने भेद दिया बहुत सुंदर रूप से। लेकिन जैसे वो ये कर रहा था, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे ये काम आधे समय में करके दिखाया और उससे बोला कि बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया है, लेकिन जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना। उसने कहा बताओ, मैं तो हर चैलेंज के लिए तैयार हूँ, आई नो आई एम द बेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको गांव के कोने में ले गया जहां दो बड़ी बड़ी पहाड़ थे और हजारों फीट गहरी खाई थी। वहां पर वो जाकर बीच में पगडंडी पर चलने लगा, पांव झूल रहा था और वो लड़के के माथे पर पसीने आ रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति बहुत स्टेबिलिटी से आगे जा। तो उस लड़के ने बोला हमारी तीरंदाजी की बात हुई थी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तो उसने कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे आगे हूँ। तो ऐसा कहकर वो आगे जाकर दोनों पहाड़ों के बीच में खड़े और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़ा शांत स्वभाव से मन को स्थिर रखकर उसने निशाना लगाया और एक्यूरेटली दो पेड़ों के बीच में जाकर वो निशाना। उस लड़के की बारी आई, उसका हाथ कांप रहा था, मुख पर पसीना था, बहुत परेशान था। उसने निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन जैसे तीर छोड़ा वो निशाने के आसपास भी कहीं नहीं पहुंचा। और ऐसा देखते ही उसके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे पता था कि वो हार चुका है। वो बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिरा और जाकर उससे बोला कि मुझे क्षमा करिए। उसने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ, लेकिन सच्ची बताऊं तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ तो आप, यू आर द बेस्ट वन। तो ध्यान से सुनिए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया। उस व्यक्ति ने उसको उठाया और अपने उठाकर गले लगाते हुए से बोला कि बेटा तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं। इसलिए यदि तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो सबसे पहले मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। और यह कहकर वो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुरा। तो दोस्तों, अगर आप देखें कि जब मन हमारा कमजोर होता है तो हर परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप लेती है। अपने वर्क को देखिए, अपने लाइफ को देखिए। इफ यू आर वीक इन माइंड, अगर हमारे थॉट्स वीक है तो हर परिस्थिति समस्या है। जब मन स्थिर होता है, बैलेंस्ड होता है, तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले। और जब मन हमारा सशक्त होता है, पावरफुल होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का रूप ले लेती है, वही परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, ये सारी कहानी हमारे मन की। आज अपने मन को हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारा मन ही बहुत बेचैन और दुखी हो गया। सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक लगता है। दो वर्ड्स, दो लाइन अगर हम देखें जो हमारी लाइफ में परमानेंटली हमारे साथ एसोसिएट हो गई हैं, और वो जानते हैं वो वायरस से भी ज्यादा इन्फेक्शियस है। और वो दो लाइंस हैं, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है। किस लिए भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन। किसी के लिए भी ये समझना भी बहुत बहुत मुश्किल, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। हर व्यक्ति इन दो शब्दों का प्रयोग करता है। और दोस्तों, आज मैं पहली चीज जो आपको बताना चाहूंगा कि कहीं पर भी अगर आप बैलेंस चाहते हैं, जीवन के अंदर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि मैनेजमेंट चाहते हैं, तो मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इन दो शब्दों को अपनी डिक्शनरी से सदा के लिए डिलीट कर। ये दो शब्द हैं, बिजी और समय नहीं। आई नेवर लेट दीज वर्ड्स गेट एसोसिएटेड। बिजी कार्डियोलॉजिस्ट है, बिजी वो है, क्योंकि बिजी वर्ड इटसेल्फ इज अ एनर्जी डिप्लीटर। तो ये वर्ड बिजी को अपने जीवन में कभी भी एसोसिएट नहीं होने। और इस बिजी शब्द में एक बहुत सुंदर शब्द छुपा हुआ है, इस बिजी शब्द में एक बहुत सुंदर शब्द छुपा हुआ है, वो है बी इजी इन माई लाइफ। बी इजी इन माई लाइफ। देखिए, बिजी शब्द यानी आप बाहर से बिजी हैं, लेकिन मन से आप बी इजी। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाहर बिजीनेस होते हुए भी मन जब हमारा इजी और कंफर्टेबल होता है, हमारी लाइफ में सुकून आता है, देन वी स्टार्ट एंजॉयिंग अवर लाइफ, वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग अवर लाइफ। दोस्तों, ये आज बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग, परिस्थितियां
हमारा फ्यूचर, हमारी मेमोरीज हमको अलग अलग प्रकार के इमोशंस के थ्रू लेकर जाते हैं। आप देखिए पूरे दिन कभी हमारे इमोशंस का स्विच, मूड का स्विच ऑन ऑफ चलता रहता है। और दोस्तों इस ऑन ऑफ के स्विच की लड़ाई के अंदर ही हम लोग तनाव की महसूसता करते हैं। आपके ऑलरेडी 3-4 सेशंस हुए हैं, लेकिन आज इस चीज को अपने जीवन में अनुभव करिए कि कोई भी प्रकार का प्रेशर अगर आप देखते हैं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द सिचुएशन। तनाव यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द सिचुएशन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कैपेबिलिटी टू डील विद इट। तो आज अगर हम चाहें अपने तनाव को कम करना चाहें तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम या तो बाहर की सिचुएशंस को चेंज करें, वो अक्सर पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरा तरीका है हम स्वयं को ही इतना शक्तिशाली बनाएं कि हम उस प्रेशर को डाइल्यूट करें। तो आज बाहर की सिचुएशंस पर फोकस ना करते, आज मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा, आज जो भी 7 प्रिंसिपल्स मैं आपको दूंगा वो उन सब चीजों को आपको अपने जीवन में प्रैक्टिस। और कल भी मैं एक सेशन ले रहा था तो मैं पूछ रहा था कितने समय करना है, तो उनमें से 80% लोगों ने बोला कि हम लाइफ लॉन्ग। तो मेरा मानना है दोस्तों लाइफ लॉन्ग कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप केवल एक कार्य करिए और मेरा ये क्लियर है कि जब भी मैं मंत्र देता हूं तो वो मंत्र जो है उसको आपको 1 साल नहीं, 1 महीना भी नहीं, 1 हफ्ता भी नहीं, केवल आपको 1 दिन से आरंभ। जब 1 दिन आप इन बातों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आपकी लाइफ स्वतः ही परिवर्तित होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। प्रेशर आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन आपका स्मूथ सी, आपकी कैपेबिलिटीज, आपका मन की जो पावर है वो आपको बहुत सुंदर रूप से स्टेबिलिटी देगी। आप कहीं पर भी स्टीयर कर सकते हैं। तो चलिए अपनी सुंदर जीवन यात्रा का आरंभ करते हैं। लेट अस स्टार्ट द मोस्ट रिवीलिंग जर्नी ऑफ आवर लाइफ। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। बैलेंस यानी व्हाट टू होल्ड ऑन, किन किन चीजों को होल्ड करना है और किन चीजों को छोड़ देना है। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आज हम ये भूल जाते हैं कि किस चीज को हमें रोकना और किस चीज को हमें छोड़ देना। दोस्तों खुशी, अपने परिवार, अपने ड्रीम्स को कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं और केवल पैसे के पीछे, काम के पीछे भागते भागते अपने जीवन में तनाव उत्पन्न करते हैं। तो आज इस सेशन में आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द इमोशनल आउटबर्स्ट जो हमारे जीवन, इसके पीछे साइंस क्या है। इस साइंस को यानी मूल बात को अगर हम समझ लेंगे तो परिवर्तन करना बहुत आसान हो जाएगा। परिवर्तन किसको करना है और क्या वो सिंपल 6-7 बातें हैं जिनको हमें परिवर्तित करना है। और मेडिटेशन के साथ हम लोग आज के सत्र का समाप्ति करते हैं। दोस्तों तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आप में से मैं कहूंगा कि अगर कोई होस्ट या कोई व्यक्ति अनम्यूट भी कहे जब मैं बोलूंगा तो आप आंसर करिए मेरे प्रश्नों का। इट विल बी वंडरफुल, इट विल बी ग्रेट टू इंटरेक्ट विद यू। ये बात हमने बचपन में पढ़ी थी, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% ऑफ हाउ यू रिएक्ट टू। 10% जो एक्चुअल हो रहा है, 90% हमारा अंदर का बिहेवियर, रिएक्शन उसको डिटरमिन करता है। और दोस्तों इसमें एक बात नोट करने वाली है, वो है वर्ड रिएक्शन। जब भी हम वर्ड रिएक्शन को अपने जीवन में लाते हैं, रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होता है, रिएक्शन ऑफन बर्स्ट, इमोशनल, अनबैलेंस्ड और जजमेंटल होता है और कभी कभी नेगेटिव भी दोस्तों हो सकता है। आइए एक सिचुएशन को हम सब लोग अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। आप सभी लोग इस सिचुएशन को अपनी लाइफ में क्रिएट करिए। देखिए जैसे कि आपको वहां पे आदेश हुआ, हम सब लोग चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, हम सबको कहा कि 50-70 पीपल, सभी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आप सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाए। और अब आप घर से निकलते हैं, घर से निकलते ही आप देखते हैं कि आप इस प्रकार के ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए, गाड़ियों का टिपिकल जमावड़ा, दिल्ली का टिपिकल ट्रैफिक, उसमें आप फंस जाते हैं। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या इस ट्रैफिक के अंदर सभी लोगों का जो बिहेवियर है वो सेम होगा या अलग अलग होगा? हम 50-60 लोग इस ट्रैफिक के अंदर फंसे हैं। प्रश्न बहुत सिंपल है कि हम सबका बिहेवियर इस ट्रैफिक में, रिएक्शन या सो कॉल्ड रिस्पॉन्स इस बिहेवियर में सेम होगा या अलग अलग? कोई भी व्यक्ति उत्तर देना चाहेगा हाथ खड़ा करके? हाँ सर अलग अलग जी, अलग अलग होगा। बिल्कुल आपने ठीक, आपका शुभ नाम? सर संदीप शर्मा। संदीप जी, बिल्कुल आपने ठीक बोला, अलग अलग होगा नेचुरली। अब आप देखिए हम में से 90% लोग जो है, 90, आप टाइप भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को, 90% लोग पहले थोड़े से इरिटेट होना आरंभ होते हैं। इरिटेशन के बाद थोड़ा क्रोध ज्यादा बढ़ता है और जब चरम सीमा पर वो ट्रैफिक पहुंच जाता है, कंट्रोल नहीं होता, तो हम लोग भी लूज कंप्लीटली कंट्रोल। हम कंप्लीटली एकदम अपने मन से, परिस्थिति से एकदम पगला जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम में से 5% लोग ऐसे भी हैं
5% लोग ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर इस ट्रैफिक का कोई भी असर नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल शांत और कूल रहे। सिचुएशन सेम है, लेकिन बिहेवियर जैसे संदीप जी ने बोला हर एक का अलग अलग है, और ये आप सब भी नेचुरली जानते हैं। तो दोस्तों मेरा अगला प्रश्न आता है कि हमारे बिहेवियर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है या हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल? बताइए, हमारे बिहेवियर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? हाँ, हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल, हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारा कोई भी बिहेवियर किसी भी प्रकार का होगा, उसके लिए स्वयं हम रिस्पॉन्सिबल है। और आप देखिए 95% लोग आज जीवन के अंदर जो रिएक्टिव बिहेवियर जनरेट करते हैं, यानी क्रोध होता है, यानी जब आप देखें ट्रैफिक में फंसते हैं और एंगर क्रिएट होता है, रीजन बिकॉज उनका मन ऑटो पायलट मोड पर कार्य कर रहा है। ऑटो पायलट मोड, स्टिमुलस आता है, रिएक्शन होता है, कोई कहता है रिएक्शन होता है, बिना सोचे समझे प्रोग्राम्ड माइंड की तरह वो लोग क्रोध करते हैं। लेकिन दोस्तों इस रिएक्टिव बिहेवियर को रेस्पॉन्सिव बिहेवियर में चेंज करने के लिए, यानी स्टिमुलस आया और उसको चेंज करने के लिए जो 5% लोग हैं वो पॉज लेते हैं, यानी अपने संकल्पों को वहीं पर विराम देते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रुकता है, अपने मन को सोचने का समय देता है, इसलिए वो रिएक्शन या रिएक्टिव बिहेवियर माइंडफुल बिहेवियर में परिवर्तित होता है। दोस्तों आज यही हमारे जीवन की समस्या है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति आती है, बिना सोचे समझे उस पर निर्णय देना, उस पर रिएक्ट करना, ये हमारी आदत है। हम चाहे मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज करें, चाहे हम जितनी भी बातें, जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ें दोस्तों, वो हमको कभी भी मैनेज करने के लिए संभव नहीं दे सकते हैं। वो टूल्स हमारे लिए कारगर नहीं होंगे जब तक हम स्वयं के मन को मैनेज करना नहीं सीखेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजिंग सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट वन शुड डू। और आप देखिए ना, ये बीच में आप बैठे हैं और आप घिरे किससे हैं? अपने परिवार से। परिवार के चैलेंज है, आपकी सोशल लाइफ है, आपके दोस्त हैं। दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसीज चैलेंजेस देती है, नेचर चैलेंजेस देता है, और साथ ही हमारी प्रोफेशनल और साइकोलॉजिकल लाइफ भी हमारे को प्रोफेशनल चैलेंजेस देती है। प्रोफेशनल चैलेंज आएगा, वर्क से प्रेशर आएगा, पर्सनल लाइफ से प्रेशर आएगा, लेकिन इन सब के बीच में मैं हूं। और यदि मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं प्रोफेशन को चेंज करूं, फैमिली को चेंज करूं, गवर्नमेंट को चेंज करूं, नेचर को चेंज करूं, अपने दोस्तों को चेंज करूं। दूसरा सिंपल तरीका है दोस्तों कि मैं स्वयं को ही एम्पावर्ड कर लूं, और यही मूल मंत्र है कि परिवर्तन स्वयं के अंदर लाना है। द चेंज हैज टू कम इन आवर ओन सेल्फ। और इसके लिए जरूरी है अपने बिलीफ को डिजाइन, अपने बिलीफ को डिजाइन करना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्र दैट वी ऑल हैव टू क्रिएट इन आवर लाइफ। दोस्तों हमारे मन के अंदर एक प्रोसेसर है जो हमारी मान्यता है, और आज ये बात समझना जरूरी है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग लोगों के बिहेवियर को चेंज करना। हम हमेशा कहेंगे तुम इस तरीके से बिहेव करो, तुम्हें प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए, तुम्हें पॉजिटिव रहना चाहिए, तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। वी ऑलवेज ट्राई टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। दोस्तों हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर हमारे बिलीफ का फंक्शन है। ये बहुत जरूरी है। आप देखिए ट्रैफिक के अंदर, देखिए ट्रैफिक के अंदर 90% लोगों का मान्यता था, उनका बिलीफ था कि ट्रैफिक इज स्ट्रेसफुल, और क्योंकि उनकी मान्यता कि ट्रैफिक इज स्ट्रेसफुल, इसलिए उनका बिहेवियर कैसा आया? क्रोध, इरिटेशन, एंगर एंड रेज। लेकिन 5% लोगों का बिलीफ था कि ट्रैफिक का उनके मन पर कोई भी असर नहीं होता, इसलिए वो कूल थे। उन्होंने कहा ठीक है ट्रैफिक है, आई एम एंजॉयिंग माय म्यूजिक, आई एम ट्रैवलिंग इन माय कार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उनका बिहेवियर एब्सोल्युटली शांत था, एंड दे रिमेन्ड काम। तो दोस्तों जब हम अपनी मान्यताओं को चेंज करते हैं, अपने बिलीफ को चेंज करते हैं, तो हमारी सोच, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। हमारा नया बिलीफ, रैशनल, एविडेंस्ड और लॉजिकल बेस्ड बिलीफ हमारे जीवन को परिवर्तित दोस्तों करते हैं। और आज यही नए बिलीफ सिस्टम में आपको कुछ, जब आपकी मान्यता परिवर्तित होगी दोस्तों, आपकी वृत्ति परिवर्तित होगी, आपके संकल्प परिवर्तित होंगे, तो आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपकी कृति, आपकी संस्कृति और आपकी सृष्टि परिवर्तित होगी। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चेंज आवर ओन थॉट्स। हमारे विचारों के द्वारा ही हमारी संपूर्ण सृष्टि दोस्तों क्रिएट होती है, और उसी के परिवर्तन के द्वारा हमारे जीवन में एक नया जीवन अनुभव हम लोग करते हैं।
तो चेंजिंग बिलीफ इज लाइक चेंजिंग आवर प्रोसेसिंग सिस्टम। अपने बिलीफ पर हम लोग बहुत हार्ड स्टिक होते हैं। मैं सोचता हूं यही सही है, यही सही है। तो आज क्या सही और गलत है, उन मान्यताओं को आज हम लोग माने, बहुत जरूरी है। एक बार एक महात्मा था, वो महात्मा बहुत सुंदर रूप से तपस्या करा, लेकिन उसकी एक यूनिक आदत थी कि बार बार बीच में वो 2 बारी शीशे को देखता। एक दिन कुछ लोग उसके पास आए और परेशान होते हुए बोले कि महात्मा जी, आपको इस शीशे को 2 बार देखने की क्या जरूरत है, आपको क्या जरूरत है ये सब करने की, अच्छा भी नहीं लगता। तो उसने मुस्कुराते हुए उन्हें बिठाया और बोला कि बेटा, जब भी मैं शीशे को पहली बार देखता हूं तो मुझे अपने जीवन की सारी समस्याओं का, आई एम एबल टू सी द रीजन बिहाइंड ऑल माई प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा जी, इस शीशे में तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है। तो वो मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल ठीक बोलते, मेरे जीवन की सारी समस्याओं का कारण, जो रीजन है, वो स्वयं मैं हूं। वो लोग बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, आप बात तो बिल्कुल ठीक बोलते। तो उन्होंने कहा, एक बार देखते हो वो तो हमें समझ में आया, लेकिन अब दूसरी बारी क्यों देखते हो? तो वो मुस्कुराते हुए बोला कि जब मैं जीवन में दूसरी बारी शीशे को देखता हूं तो मुझे अपने जीवन की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन दिखता है। आई एम एबल टू सी द सॉल्यूशन टू ऑल माई प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा, उस शीशे में तभी भी आपको अपनी शक्ल दिखती होगी? तो उसने कहा, बिल्कुल ठीक। यदि मेरे जीवन की प्रॉब्लम्स का सारा कारण मैं हूं, तो मेरे जीवन का सॉल्यूशन भी मेरे ही पास है। तो दोस्तों, जो पहला मंत्र जो आज आप लेकर जाएंगे वो यही है कि इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डेस्टिनी। You are responsible for all your destiny. Nothing else will trouble you more than your own self. तो अगर चेंज आपको लाना है, उस चेंज को, परिवर्तन को स्वयं आपको अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर दोस्तों लाना है। देखिए, एक और बहुत सुंदर चीज जो आज हम लोग देखेंगे। आप में से कौन कौन इस पिक्चर को देख पा रहे हैं? और कोई भी एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके अपने आप को अनम्यूट कौन कर सकते हैं? एनी पर्सन हु कैन आंसर, एनी पर्सन। मैं देख रहा हूं दीपक जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, नीरू जी हैं, एनीबॉडी हु कैन अनम्यूट वन पर्सन जिनसे मैं पूछूं। ओके, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी बुद्धि राजा जी, आप उत्तर दीजिए। Yes. तो इस फोटो के अंदर क्या क्या दिख रहा है? यस सर। हाँ, क्या क्या दिख रहा है सर एक पर्सन है और वो आई थिंक सर वो किसी चीज पे उनका हाथ है, बट मैं उसे समझ नहीं पा रही कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप में से कोई और व्यक्ति जिसको ये पिक्चर और क्लियर दिख रही है वो आंसर कर सकते हैं? कौन करेंगे बताइए? ओके, संस्कृति जी आप बताइए। संस्कृति जी आप बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे पिक्चर दिख रही है कि रेत पे एक पियानो बना हुआ है, एक नाइट लैंप भी रखी हुई है बीच पे, और इस फोटो का एंगल ऐसे लिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि पियानो नहीं, आपको रखा दिख क्या हुआ क्या रहा है? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है? पियानो दिख रही है, रेत दिख रहा है, एक लड़का भी दिख रहा है आपको, राइट? जी सर, वो हमको पियानो समुद्र बजाने भी की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल ठीक। जी, समुद्र भी दिख समुद्र रहा का है। किनारा दिख रहा है जी सर। आपको, पीछे समुद्र के पीछे घर भी दिख रहे हैं आपको बहुत सारे। जी सर, हमको समुद्र बिल्कुल के पीछे परफेक्ट है, घर आपने भी दिख बिल्कुल रहा है। ठीक बोला। अब आप ये बताइए, आपको इस फोटो में क्या दिख रहा है? लड़का क्या कर रहा है? सर इसमें वो रेत पे लेटा हुआ है अब आप और अभी भी चीजें अब क्लियर आप दिख रुक रही जाइए। हैं। अब आप रुक जी। जाइए। अब आप सब लोग देखिए इस फोटो को और ध्यान से देखकर आप इस चीज को समझिए कि यदि मैं ये कहूं कि ये भी लड़का रेत पर लेटा हुआ है तो क्या ये सही है या गलत है? बताइए संस्कृत। सर मुझे तो सही लग रहा है कि वो रेत पे अच्छा, ही लेटा अगर हुआ मैं है। ये कहूं कि ये समुद्र के किनारे लेटा हुआ है तो क्या ये सही है या गलत है? ये भी सही है सर। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये लड़का पियानो पे लेटा हुआ है जो कि मिट्टी पर बना है तो क्या ये सही है गलत है? ये भी सही है सर। ये भी सही है। तो जिस जी। नजरिए से हम इस फोटो को देखेंगे वही नजरिया हमारे जीवन में बाहर आ जाएगा। एग्री करते हैं इस बात से या नहीं? बिल्कुल सर। दोस्तों, तो हमारा जीवन इसी प्रकार का है। जब कोविड हमारे सामने आया तो कुछ लोगों ने उसको बहुत डर के हिसाब से देखा, चैलेंजेस के हिसाब से देखा, घबरा कर देखा, और उस कोविड ने उनके जीवन में उन पर बहुत बहुत गहरा असर डाला, उनके मन को बहुत परेशान किया दोस्तों, दुखी किया। लेकिन कुछ लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी के रूप से देखा, उन लोगों की सेवा की, उन लोगों को हेल्प किया, और उस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते उस कोविड ने उनके जीवन के मायने को भी बदल दिया। तो दोस्तों, चीज और लोग और परिस्थितियां कभी भी गलत नहीं होते। हमारी स्वयं की इंटरप्रिटेशन, हमारा स्वयं का मन ही उनको उस प्रकार से डालता है। अब आप देखिए, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, हर व्यक्ति को सेम प्रकार की सर्दी भी नहीं लगेगी, हर व्यक्ति को सेम प्रकार की गर्मी भी नहीं लगेगी, लेकिन उसके ऊपर हमारा बिहेवियर रिएक्शन जो है वो हमारे स्वयं मनोस्थिति पर
डिटरमिन करता है। और तभी मैं आपको आज बताना चाहता हूं, मेरा दूसरा मैसेज, लाइफ इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन का दिशा निर्देश निर्धारित करता है दोस्त। जब हम अपने पर्सपेक्टिव्स को, अपने दृष्टिकोण को बदल लेते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही बदल जाता है। तभी डॉक्टर रॉन डॉयर ने बहुत सुंदर कहा, इफ यू चेंज द वे you look at things, the things you look at, they change. If you change the way you look at people, the people you look at change. And if you change the way you look at situations, the situations you look at, they change. तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन जो है, वो सिचुएशन बाहर की परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन वो सिचुएशन डिपेंड करती है हमारे स्वयं की मनोस्थिति। और जब हम अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हैं, हमारा संपूर्ण जिंदगी परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों, आज एक दिन के लिए केवल एक एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है कि हर परिस्थिति के अंदर हर प्रकार के व्यक्ति आपके पास आएंगे। कभी कोई अच्छे होंगे, कोई खट्टे मीठे होंगे, कोई नेगेटिव होंगे, कोई आपको दुख देंगे, कभी कोई कष्ट पहुंचाए। लेकिन हमको केवल एक कार्य करना है कि हर व्यक्ति को एक अच्छे और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से और हर परिस्थिति के अंदर, चैलेंजेस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना ही एक श्रेष्ठ और स्थिर मन की निशानी है दोस्तों। तो हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को निर्भर करता है, हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। आप देखिए, जीवन में जब भी परिस्थितियां आती हैं, अनसर्टेनिटी आती है, तो उस अनसर्टेनिटी में हम लोग अपने आप को किसी परेशानी से घिरा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जैसे आपने वो कहानी सुनी कि वो महात्मा, वो जो व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, उसने कहा कि जब मन स्थिर है, जब आई ऑफ द स्टॉर्म यानी जो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म वो कंट्रोल और काम में है, तो ऑटोमेटिकली बाहर की परिस्थितियां हमारे जीवन में दोस्तों नहीं मैटर करती। ये बहुत सही। आप देखिए, एक हथौड़े और चाबी में एक बहुत सुंदर वार्तालाप चल रहा है। हथौड़ा चाबी से मुस्कुराते हुए बोला कि हे चाबी, मेरे अंदर तुमसे कई गुना ज्यादा शक्ति, और मैं इस हथौड़े को बाहर से खोलने की कोशिश करता हूं, मैं इसको तोड़ता हूं, मैं इसको मारता हूं, लेकिन ये ताला खुलता नहीं। तुम्हारे अंदर टूट जाता है लेकिन खुलता नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी क्या शक्ति है जो तुम इस ताले को 1 सेकंड में खोल देती? तो चाबी मुस्कुराते हुए बोली कि भैया, तुम अपनी सारी शक्ति का उपयोग बाहर से करो, लेकिन मैं इस ताले के अंदर जाती हूँ, सही जगह पर आकर थोड़ा सा घुमाव लगाती हूँ और ये ताला खुल जाता है। दोस्तों, हमारा जीवन भी इसी प्रकार का। जब हम अपने जीवन में अपने मन को पावरफुल बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं दोस्तों, तो हर परिस्थिति का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली हमको प्राप्त हो जाता है, हमको मिल जाता है। आज ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके मन के अंदर, आपके जीवन के अंदर आपका मन एक दिन में 50 to 70,000 थॉट्स जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। एंड आउट ऑफ दोस 50 to 70,000 थॉट्स, हमारे 95% यानी 95% जो हमारे विचार हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, वेस्ट होते हैं और नेगेटिव होते हैं। आप सोचिए, एक फैक्ट्री, एक यूनिवर्सिटी जिसके अंदर से अगर 100 प्रोडक्ट या 100 बच्चे निकल रहे हैं और 95% वेस्ट है, नेगेटिव है, यूजलेस है, तो आप ऐसी फैक्ट्री को क्या कहेंगे? यूजफुल फैक्ट्री कहेंगे, यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे? नेचुरली यूजलेस फैक्ट्री। केवल 5% हमारे विचार पॉजिटिव, पावरफुल और सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों। और ये शो करता है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। हमारे विचार ही हमारे जीवन के अंदर हमारा व्यवहार बनता है। हमारी एक एक सोच, एक एक संकल्प हमारे जीवन में हमको बिहेवियर देता है, और हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार हमारे जीवन के अंदर हमको इमोशंस और फीलिंग देता है। और यही फीलिंग्स जो है हमारे विचारों को दोबारा जाकर ट्रिगर। तो आप स्वयं अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे विचार सकारात्मक हैं? अगर पॉजिटिव थॉट्स हैं तो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, और अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, यूजलेस थॉट्स हैं दोस्तों, तो हमारी फीलिंग्स भी नेगेटिव, वेस्ट और यूजलेस ही है। वो हमको हमेशा परेशान करती रहेंगी। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने मन को अपना बेस्ट मित्र बनाना, अपने मन को सदा मित्र बनाना। तभी कहते हैं मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। व्हाई? बिकॉज ईच ऑफ योर थॉट्स इज क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। आपका विचार जो है, जब आप उसको रीडिजाइन करते हैं, तो यही विचार जो है आपको एक नया जीवन दे देता है, एक नया दिशा निर्देश दे देता है। आज ये समझना आवश्यक है कि आज का मानव अपने मन पर संपूर्ण नियंत्रण खो चुका है। तभी किसी ने बहुत सुंदर कहा है
कि माइंड इज अ ब्यूटीफुल सर्वेंट। जब तक आप मन को अपने वश, अपने कंट्रोल, अपना मित्र बनाकर रखते हैं दोस्तों, तो वो एक बहुत सुंदर सर्वेंट की तरह कार्य करता है। लेकिन जब आप उसको खुला छोड़ देते हैं, उसके ऊपर से संयम हटा लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा डेंजरस मास्टर बन जाता है, क्योंकि इट कैन रन योर लाइफ इनटू हैप्पी। इसलिए आपका एक एक विचार, हमारा एक एक विचार बहुत बहुत सुंदर हमारा भविष्य का निर्माण कर रहा है। इट इज क्रिएटिंग अवर ओन फ्यूचर। ये जानना बहुत आवश्यक, ये समझना बहुत आवश्यक। हमारा विचार हमारे जीवन, हमारे बॉडी, हमारे जीन्स पर इफेक्ट करता है दोस्तों। हमारे विचार ही हमारे संबंधों को डिटरमिन करते हैं, किस प्रकार के हमारे संबंध, और हमारा विचार ही हमारे जीवन के अंदर, हमारे फूड, हमारे भोजन, हमारे एटमॉस्फेयर पर पावरफुल असर डालता है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज प्रैक्टिकली गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय योर थॉट्स। इतनी शक्ति हमारे विचारों के अंदर है। इसलिए अपने विचारों को सदा श्रेष्ठ और पावरफुल बनाएं। हर व्यक्ति के लिए शुभ सोचना, शुभ संकल्प क्रिएट करना यह आवश्यक है। कभी भी किसी की नेगेटिव बातों को अपने चित्त पर धारण करना, यह हमारे लिए एक जहरीले पॉइजन की तरह हो जाता है। इसलिए हम लोग शब्दों से भी ज्यादा अपनी वाइब्रेशन से रिएक्ट, अपने वाइब्रेशन से एक दूसरे से इंटरेक्ट। आप देखिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर, अलग अलग कॉलेजेस के अंदर है, और आप सेंट्रल जगह पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर भी इन्वॉल्व। लेकिन जब हम सब लोग एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस का ऑरा क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पावरफुल वाइब्रेशंस हमारे जीवन में हमको सकारात्मक चिंतन, हमको सकारात्मक एनर्जी और संकल्प भी देती है। इसलिए अपने विचारों को, अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल और बहुत श्रेष्ठ, यही विचार हमारे जीवन में हमारे संसार का निर्माण करते हैं। इसलिए मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, उसको पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव मीन्स बीइंग स्ट्रांग, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड बीइंग मोटिवेटेड। अगर हम लोग हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, पेसिमिस्टिक रहेंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल, तो वो हमको वीकनेस देगा। लेकिन आशावादी जीवन के अंदर सदा पॉजिटिविटी, यस दिस इज पॉसिबल, यस आई कैन डू, तो ये हमारे जीवन में हमको शक्ति देता है, हमको पावर देता है, और हम अपने सुंदर जीवन का निर्माण दोस्तों कर सकते हैं। तो माय थर्ड मैसेज टू यू इज, यू आर व्हाट यू थिंक। आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप 100 लेक्चर सुनिए, आप वर्ल्ड के बेस्ट स्पीकर्स को सुनिए, लेकिन जब तक आप इस समय एक पल पर अपने विचारों को परिवर्तित नहीं करेंगे, जीवन कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस परिवर्तन के लिए हमको 2 घंटा 10 घंटा नहीं चाहिए। उस परिवर्तन के लिए केवल हमको कुछ सेकंड, कुछ मिनट चाहिए। केवल एक विचार को परिवर्तित करेंगे, आपकी लाइफ विल स्टैंड ट्रांसफॉर्म फॉर एवर एंड फॉर एवर। दोस्तों, आज तीसरा मंत्र जो मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसे हम लोग शरीर को भोजन खिलाते हैं, उसी प्रकार मन को भी भोजन खिलाना बहुत आवश्यक है। आज शरीर को तो हम लोग बहुत अच्छी डाइट देते हैं, अच्छी हेल्दी डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, प्योर वेजिटेरियन न्यूट्रिशियस डाइट भी देंगे। लेकिन दोस्तों, आज साइंस ये कहती है कि न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग गुड डाइट। केवल अच्छा और पावरफुल भोजन खाना यही हमारे जीवन का आधार नहीं है दोस्तों, लेकिन इसके साथ भोजन की वाइब्रेशंस भी पावरफुल बनाना ये बहुत आवश्यक है। तभी आज हर बुक के अंदर हर न्यूट्रिशनिस्ट आपको बोलता है, हेल्दी ईटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द कैलोरीज एंड मैक्रोज, but it is also about the vibrations that you put into your food and water. तभी आप देखेंगे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे, जब भी हम ऐसे स्थानों पर जाते हैं और भोजन खाते हैं, तो वहां का भोजन हमको शांति और शक्ति प्रदान करता है। ऐसा भोजन अगर हम अपने घर पर बनाना चाहें, तो उसके अंदर केवल 4 वाइब्रेशंस को हमको डालना, और वो 4 वाइब्रेशंस है परमात्मा का। जब भी भोजन बनाए, ऐसा नहीं एक कान पर फोन लगा हुआ हो, जोर से टेलीविजन चल रहा हो, कुछ म्यूजिक चल रहा हो, नहीं। भोजन हमेशा परमात्मा की याद में और सदा उसके प्यार में बनाना चाहिए। अपने भोजन के अंदर शांति की वाइब्रेशन, अपने भोजन के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भी इंस्टिल करिए, और इसी के साथ साथ अपने भोजन में परमात्मा के प्रति शुक्राना, थैंक्स की भावनाओं को भी सदा एनर्जाइज करें। आप केवल एक दिन अपने भोजन को इन सकारात्मक संकल्पों से एनर्जाइज करेंगे,
आप देखेंगे आपका हैप्पीनेस इंडेक्स 100% इंक्रीज हो, 100% इंक्रीज, दैट मींस इट विल प्रैक्टिकली डबल अप दोस्तों। दिस इज व्हाट न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी टेल्स अस। इस पर जो साइंटिफिक स्टडीज भी हुई हैं वो बहुत सुंदर रूप से दिखा। डॉक्टर मासारू इमोटो ने जो साइंस की स्टडीज कंडक्ट की थी उसमें दिखाया कि जब हम पानी की बूंद को एक ही सोर्स से लेते हैं और उस सोर्स में से एक पानी की बूंद को हम नेगेटिव संकल्प देते हैं, यू आर अगली, आई डोंट लाइक, और दूसरे पानी की बूंद को हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, आई एम थैंकफुल, क्योंकि आप मेरे को सुख देते हो, आप मेरे थर्स्ट को बुझाते हो। तो दोस्तों देखिए, केवल कुछ सेकंड की ही मेडिटेशन पानी के बूंद के स्ट्रक्चर को कितना पावरफुल रूप से चेंज कर दे। इट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर केवल बाय आवर वाइब्रेशन। पॉजिटिव वाइब्रेशन विल कंप्लीटली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वाटर। नॉट ओनली दिस, जब चावल के दानों को 3 अलग अलग जार्स में डाला और उनको 3 अलग अलग इमोशंस दिए गए, हेट, नथिंग एंड लव। तो दोस्तों प्यार की भावना, लव, आप देखिए वो चावल का दाना बिल्कुल हेल्दी रहा, लेकिन जब हेट और नेगेटिव और न्यूट्रल वाइब्रेशंस दी गई तो वो भोजन उसी परिस्थिति में उसी जार के अंदर वही सेम भोजन जल्दी सड़ गया, यानी जल्दी स्पॉइल हो गया, खराब हो गया। दैट मीन्स हमारी वाइब्रेशंस ही हमारे जीवन के अंदर बहुत सुंदर रूप से हमारे भोजन को शक्तिशाली बनाते हैं। दोस्तों फोर्थ एक्सरसाइज है अपने भोजन को सदा सकारात्मक शक्ति से भरो। यू आर वॉट यू ईट, केवल शरीर के लिए भी और साथ में मन का भोजन भी बहुत आवश्यक है। चेक करें किस प्रकार की इमोशनल डाइट हम लोग खाते हैं। पूरे दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया से हम लोग अपने आप को घिरा। और दोस्तों इस एनर्जीज के अंदर, इस सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से घिरे हुए हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दर्द, कहीं ना कहीं दुख, अनसर्टेनिटी और डर बैठ जाता है। पेन, वरी एंड अनसर्टेनिटी और फियर, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सर्वव्यापी हो जाए। जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी, मोबाइल में मैसेज आएगा या फॉरवर्डेड मैसेज आएगा, आप टेलीविजन खोलेंगे वहां पर 33 चैनल्स को आप देखेंगे, कहीं पर भी अखबार को खोलेंगे वहां पर नेगेटिव न्यूज देखेंगे, उस नेगेटिव एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब, और दोस्तों यही नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करके हम लोग बाहर फॉरवर्ड के द्वारा एक दूसरे से बात करके नेगेटिव एनर्जी बाहर रेडिएट करते हैं। दोस्तों ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके और रेडिएट जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नेगेटिविटी बढ़ती है। और एनर्जी के साथ हम 3 ही चीजें कर सकते हैं, या तो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं या रेडिएट कर सकते हैं, या उस एनर्जी को हम चेंज भी कर सकते हैं। और इसी परिवर्तन को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिए जब आपके मन के अंदर परेशानी है, दुख है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो अनसर्टेनिटी के अंदर आपका रैशनल ब्रेन, सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है और इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कि तब हमारी गाड़ी को हम नहीं ड्राइव करते हैं, हमारा डर और हमारे इमोशंस ड्राइव करते हैं। तो आज टेक्नोलॉजी ने हमको सब कुछ दिया है, वी आर वाइजर, वी आर स्मार्टर एंड वी आर फास्टर, लेकिन मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि आर वी हैप्पियर टुडे? क्या आज हम अपने जीवन में, परिवार में, संबंधों में खुश हैं? ये अपने आप से पूछ कर देखिए। सवेरे से शाम कहीं ना कहीं इसी प्रकार हम लोग भी एक चेन्ड एनिमल बन गए। देखिए हर जगह हम अपने आप को डिवाइसेस से घिरा हुआ पाते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं इन डिवाइसेस से घिरे हुए हम इस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और हाई कैलोरी डिजिटल कंजम्पशन हमारे मन पर, हमारी प्रोडक्टिविटी पर, हमारे शरीर पर, हमारे संबंधों पर 4 जगह बहुत बहुत गहरा प्रभाव डालता है, बहुत नेगेटिव प्रभाव डालता है। इट इज हैविंग कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट ऑन आवर माइंड। बल्कि एक स्टडी ने दिखाया कि जो लोग डिजिटल और मोबाइल एडिक्ट्स हैं वर्सेस जो लोग चरस और गांजा यानी ओपियम के एडिक्ट्स, उन लोगों के ब्रेन के अंदर सिमिलर चेंजेस पाए जाते हैं। The changes are absolutely similar. And this high calorie digital consumption हमारी बॉडी, हमारे शरीर, हमारे प्रोडक्टिविटी, रिलेशंस और हेल्थ सब पर एक गहरा नेगेटिव प्रभाव ब्रेन पर डाल रहा है। इसलिए मेरा 5th मंत्र, जो पावरफुल मंत्र है, प्रैक्टिस डिजिटल डिटॉक्स एटलीस्ट फॉर सम टाइम। हम लोगों को एक दिन में 1440 मिनट दोस्तों, और मैं आपको यही बोलूंगा कि 1440 मिनट में से केवल
150 to 120 मिनट्स टू 160 मिनट्स अपने लिए, जीवन के लिए निकालें। रात को सोने से पहले 30 to 60 मिनट्स आप कंप्लीटली डिजिटल डिस्कनेक्ट हो जाइए, मोबाइल को ऑफ, इंटरनेट को ऑफ, सब प्रकार से डिस्कनेक्ट। जब आप रात को बैठे तो कुछ ग्रेटिट्यूड जर्नल, कोई अच्छी बातें, कोई अच्छी बुक, कोई अच्छी मैगजीन, आप किसी ना किसी प्रकार की चीजें आप पढ़ें। इसी प्रकार जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो फर्स्ट 60 मिनट्स ऑफ द मॉर्निंग आप कोई पॉजिटिव संकल्प, कोई पावरफुल संकल्प, कोई मेडिटेशन या अपनी एक्सरसाइज समय अनुसार। लेकिन सवेरे उठते ही व्हाट्सएप और फेसबुक गुड मॉर्निंग करना, ये आपकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं बहुत कम कर देती है और आप परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अपने परिवार के साथ जब आप लोग बैठे हैं, शाम को 40 मिनट्स अपने परिवार के साथ बैठते हैं, वो 40 मिनट्स में कंप्लीटली मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए या दूर अपने से रखिए। जब हम 120 मिनट्स अपने जीवन में 160 मिनट्स निकालते हैं, उसके बाद बाकी समय आपको जितना भी मोबाइल यूज करना है आप करिए। ये हमारे जीवन के अंदर हमको संयम देता है, हमको एनर्जी देता है, हमारे जीवन में बैलेंस देता है। तो आज आप क्या करेंगे? हम सब लोग घर जाएंगे, लेकिन एक ई फ्री मील खाएंगे। मेरे अपने परिवार, मेरे फादर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, मदर गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं खुद कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी छोटी बहन भी। हम सब लोग चारों आज भी टेबल पर बैठकर भोजन साथ में खुश रहते हुए खाते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी डिजिटल अप्लायंस, कोई टेलीविजन कभी भी नहीं चलता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग डिजिटली डिस्कनेक्ट करें या डिजिटली वाइज होकर एक दूसरे से कनेक्ट करें। डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करना, ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं संयम, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए द फिफ्थ पावरफुल मैसेज इज डिजिटली डिटॉक्स। देयर इज नो डाउट। मतलब ऐसा है दोस्तों, दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट SC ST कैंडिडेट्स, पर्पस ये है। हाँ हाँ, वो इसी प्रकार दोस्तों, जैसे हम आगे जीवन में चलते, तो आगे जीवन में चलेंगे तो हम देखेंगे कि कभी कभी परेशानी आएंगी, कोई सिचुएशंस आएंगी, कोई परिस्थिति आएंगी। और आज जो सबसे मेजर चैलेंज मैनेज करने में आज पूरी दुनिया को हमारे ऑफिसेस के अंदर होता है, वो है स्वयं को मैनेज करना। और उसका मेजर कारण है द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट नेवर एग्जिस्टेड। जैसे कि आप देख रहे थे, कभी ना कभी हमारे जीवन के अंदर भी परेशानी आती है। आई विल टेल यू कैसे हम सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि शाम को आप करीब 4-5 बजे अपने घर पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ ऑफिस से घर पर पहुंच जाते हैं 5-5:30। या जिस व्यक्ति ने आपके घर पर आना है, टिपिकली वो 5:30 बजे या 6 बजे तक आ जाते हैं, और आज 6:15 6:30 हो गए हैं, वो व्यक्ति अभी तक घर पर नहीं आया है। जैसे ही आप इस बात को सोचते हैं, ऑफिस फोन लगाते हैं, तो ऑफिस में आपको पता लगता है कि वो ऑफिस से निकल चुके। आप उनके मोबाइल पर फोन लगाते हैं तो मोबाइल पर आता है, तो मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ एंड नॉट रीचेबल। तो हमारे मन में किस प्रकार के विचार आए? आप में से लोग बोलेंगे कि न्यूट्रल विचार आएंगे, हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो सकता है मोबाइल ऑफ हो गया। अब दोस्तों 6:30 बजे के साथ साथ 6:45 होते हैं, 7 बजते हैं। अब आप सोचिए कि सिचुएशन यही है, उनका मोबाइल रीचेबल नहीं जा रहा, ऑफिस से वो निकल चुके हैं। मन में किस प्रकार के विचार आएंगे? अगेन आप कहेंगे कि अब विचार कुछ नेगेटिव हो जाएंगे, परेशानी आने लगेगी। दोस्तों 7:30 बज जाते, 7:30 बजे आपकी फेवरेट डिश आपके सामने, आपका टेलीविजन सीरियल फेवरेट आपके सामने है, लेकिन परिस्थिति वही है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है और वो घर पर नहीं आए हैं अभी तक, ऑफिस से निकल चुके हैं। किस प्रकार के विचार आएंगे? आप कहेंगे बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। ध्यान रखिए, हुआ कुछ भी नहीं है, नथिंग हैज हैपेंड इन आवर लाइफ, लेकिन विचारों को देखिए कि विचार कहां से कहां उड़ान भर रहे हैं। और दोस्तों 8 बजते हैं, तो 7:45-8 बजे यदि मैं कहूं कि यही बात सोचकर उस एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर में पॉसिबल है कि आपके माथे पर, आपके मन पर, माथे पर पसीने आने लगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल है, कोई वर्स्ट सिचुएशन इमेजिन। 7:15 बजे आपके दरवाजे पर घंटी बजती है और जिस व्यक्ति की आप वेट कर रहे हैं दोस्तों, वो आपके सामने खड़ा। मैजिक है, आपका सारा स्ट्रेस डिफ्यूज हो जाता है और आपका तनाव खत्म होकर आप उसको कैसे ग्रीट करें वो अलग है, लेकिन आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन 3 घंटों में 5 से 8 बजे तक कुछ भी एक्चुअली हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन केवल मन के संकल्पों के द्वारा, ओवर थिंकिंग के द्वारा हमने एक ऐसी सिचुएशन मन में क्रिएट कर ली जो हमारे जीवन में हमको परेशानी दे रही।
ये इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट कर लिया कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग के द्वारा। और दोस्तों यही आज हमारे सबके मन के साथ, हम सबका मन विदाउट एक्सेप्शन एक प्रोजेक्टर की तरह दोस्तों कार्य करता है। प्रोजेक्टर की तरह ये मन जो है छोटी सी सिचुएशन को भी मैग्नीफाई कर सकता है और बड़ी सी सिचुएशन को भी छोटा कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ आवर माइंड प्रोजेक्ट। लेकिन एक बात समझनी होगी कि जब ये छोटी सी बात को बड़ा करता है, मैग्नीफाई करता है, तो इसके साथ साथ ये उसके साथ एसोसिएटेड इमोशंस को भी मैग्नीफाई कर देता है। तो एग्जैजरेशन ऑफ मिस्टेक्स, लोगों ने ये कहा, किसी ने ऐसा कहा, छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में धारण करना, छोटी छोटी बातों को अपने मन पर रोक कर रखना, उनके लिए नेगेटिव सोचना, आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको ब्लो करना, तो दोस्तों हमारे जीवन के सकारात्मक एस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इग्नोर, हम जीवन में खुश नहीं रह पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को सदा ओवर थिंकिंग से दूर रखें, जिसको पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस मैं कहता हूं। ये पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस किसी भी प्रकार से आप अपने जीवन में ना करें। कोई भी परिस्थिति किसी भी प्रकार से है, बहुत रिलैक्स होकर हर चीज को इंटरप्रेट करें, सुकून की भावना, पॉजिटिव भावना रखें। दोस्तों कोई भी व्यक्ति कैसा भी है, उसकी छोटी बात को छोटा ही रहे। और आज हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति कोई नेगेटिव बात कहता है तो हम सबसे पहले मोबाइल या व्हाट्सएप उठाएंगे अपने मित्रों को, उसने ऐसा कहा, दूसरा व्यक्ति कहेगा उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने पिछली बार भी ऐसे कहा था, और ऐसे करते करते छोटी बात एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। दोस्तों आज बहुत आवश्यक है कि सिचुएशंस जिस प्रकार की हैं उसी प्रकार से उन सिचुएशंस को देखना, यही है मन के अंदर बैलेंस को रखना। तो इसलिए फिफ्थ एक्सरसाइज जो हम सब लोग एक दिन के लिए करेंगे, सी द सिचुएशंस एज दे आर। छोटी छोटी बातों को छोटा ही रहे। अगर कोई बात है उसको हल्का करके चलो, हर एक को एक्सेप्ट करो प्यार से, और इस प्यार से एक्सेप्ट करते ही जीवन के अंदर हमको सुकून और शांति की दोस्तों अनुभूति हो। दोस्तों कभी कभी जीवन में मिस्टेक्स भी हो जाती है, कभी कभी कोई परेशान, कोई प्रॉब्लम्स हमारे जीवन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती, लेकिन ऐसे समय पर लोगों को पॉइंट करना, उंगली दिखाना, उनको ब्लेम करना, ये ब्लेम करना हमारे अंदर हमारे मन की क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय करता है। यदि आप सोचिए कि बार बार एक व्यक्ति को हम लोग ब्लेम करें, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वो अपने आप को कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा और कुछ समय बाद द पर्सन विल गो इनटू अ शेल। तो ब्लेम एंड अनसर्टेनिटी विल डिस्ट्रॉय द क्लैरिटी ऑफ माइंड। हमेशा वो धुंधला चश्मा लगाकर ही उस व्यक्ति को देखेंगे हमेशा, और जब भी हम ऐसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारी परिस्थिति परेशान हो जाएगी। वी विल बी एबल टू मेंटेन द साइट, बट परिस्थितियों के अंदर देखने की कैपेबिलिटी, वी विल लूज द इनसाइट इनटू द सिचुएशन। इसलिए कभी भी किसी को रिफॉर्म करना है, स्वयं को चेंज करना है, द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस। लीडरशिप स्किल्स के अंदर वेरी पावरफुल थिंग ऑफ अ लीडर, ट्रेट ऑफ अ लीडर इज टू एक्सेप्ट एवरीवन इन देयर ओन लिमिटेशंस। गलतियां सबसे होती हैं, और अगर किसी से होती भी आप उन्हें प्यार से समझाइए। रिपीटेटिवली होती है, रिपीटेटिवली समझाइए। 10 बारी होती है, 50 बारी होती है, 51 बारी समझाइए। और अगर वो नहीं भी कर पाता है, अपने मन की स्थिति को ना खराब करते हुए स्वयं उसको सहज मन से कार्य को कर दीजिए, ताकि आप शांत रहें। दोस्तों अपने मन की खुशी का, शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति के स्वभाव को देना, ये सबसे बड़ी गलती हम लोग आज करते हैं, और इस गलती को हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने मन को ब्लेम और ओवर थिंकिंग से हमेशा रिफ्रेन करें। ब्लेम हमारे जीवन के अंदर गिल्ट फीलिंग लाता है, और गिल्ट हमारी परफॉर्मेंस को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए जीवन में सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच रखना, जीवन में प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं, सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच रखना। क्या, क्यों, कैसे, किसने से ज्यादा बेटर है, हाउ शुड वी डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट शुड बी द अप्रोच जो हमारे जीवन, हमारे लाइफ के अंदर सदा होनी चाहिए। और यह सॉल्यूशन लाने से हम अपने जीवन में सहज रूप से हर व्यक्ति को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर दोस्तों बना सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने जीवन को शक्तिशाली बनाना, बहुत आवश्यक। दोस्तों आज अपने मन को, अपने इनर स्पेस को भी हमेशा, जिस प्रकार से आज हम अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे कोविड टाइम्स के अंदर
अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, साबुन से धोते हैं, अपने हाइजीन को मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से फिजिकल हाइजीन हमारे मन में, हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, तो आज मेरा प्रश्न आप सब लोगों से यही आता है कि क्या आज हम लोग इमोशनल हाइजीन भी मेंटेन करते हैं? उस वायरस को तो हाथ धोकर, मास्क पहनकर या कहीं ना कहीं हम अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर अपने आप से दूर रख सकते हैं, लेकिन क्या आज हम लोग अपने मन के वायरस को भी, मन के नेगेटिव इमोशंस को भी अपने से दूर रख पाते हैं दोस्तों? आज अपने आप से पूछना। आज आप देखिए कि एक समय की बात है कि 2 बौद्ध भिक्षु कहीं ना कहीं जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो जा रहे थे तो रास्ते में नदी पार करने का टाइम आया। यहाँ फोन नदी पार करने का टाइम, और जैसे वो नदी पार कर रहे थे तो नदी पार करते करते उन्होंने देखा कि उनमें से एक व्यक्ति ने देखा कि वहां पर कन्या जो है नदी के बीच में फंसी हुई, और जैसे बीच में नदी में वो कन्या फंसी हुई है तो एक भिक्षु को दया आई और उसने उसको नदी के पार उठाकर रख। दोस्तों, जैसे ही उसके दूसरे भिक्षु ने, मित्र ने देखा तो उसको देखकर ये बहुत क्रोध आया और उसने उससे बात करना बंद कर दिया। वो मन में सोचने लगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसका मन बहुत परेशान। 4-5 दिन बीतने के बाद जब उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया तो वो अपने मित्र के पास गया और जाकर उससे बोला कि मित्र, आज से 5 दिन पहले तुमने उस कन्या को उठाया था, तुम्हें उसे सर पर नहीं उठाकर रखना चाहिए। तो उसका मित्र मुस्कुराते हुए बोला कि मित्र, मैंने तो आज से 5 दिन पहले केवल उसको 5 मिनट के लिए उठाया, तुम तो पिछले 5 दिनों से उसे अपने मन पर उठाकर घूम रहे हो। दोस्तों, आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी यही होता है। हम नेगेटिविटीज को, हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं लोगों की बातों को अपने मन पर बोझा लेकर ढोते रहते हैं, मन पर अपने जीवन के अंदर बोझा लेकर ढोते हैं, उनकी बातों को अपने जीवन पर धारण करते रहते हैं। ये नेगेटिव बातें, ये कहीं ना कहीं बातें हमारे जीवन पर आती हैं, हमारे मन पर हम धारण कर लेते हैं। आज अपने मन की किचन पर जाकर देखिए, अपने मन की किचन पर जाकर देखिए, अगर किस प्रकार के इमोशंस को हमने मन पर धारण किया हो। दोस्तों, एक व्यक्ति ने हमको कुछ नेगेटिव बोला और उसकी बात को हमने मन पर रख लिया, दूसरे व्यक्ति ने भी हमको नेगेटिव बोला, उसके मन की बात को भी हमने अपने जीवन पर रख लिया। ऐसे करके रोज हमको कोई बात बोले और 365 दिन 365 लोग हमको बात बोलते हैं। 10 साल तक हम ये एक्सरसाइज कर, हम कर, चाहे कुछ भी हो जाए, इस व्यक्ति को मैं माफ नहीं करूंगा या करूंगा, इसकी बात को मैंने अपने जीवन में धारण किया, मेरे को बहुत दुख होता है। और 10 साल बाद भी वो व्यक्ति मेरे सामने आता है तो वो फीलिंग्स मेरे मन से उसके लिए इमिट होती है, वो नेगेटिव भावना इमिट होती हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं रहता दोस्तों, मेरा मन कूड़ेदान बन जाता है। इट इज लाइक अ डस्टबिन बॉक्स। आज अपने मन पर देखिए कि कहीं ना कहीं क्रोध है, इरिटेशन है, ईर्ष्या, घृणा है, लोगों के प्रति कंपटीशन और क्रिटिसिज्म की भावनाएं हैं, कंप्लेन की भावना हमारे, और लोगों के प्रति एक्सपेक्टेशंस की भावनाएं हैं। ये भावनाएं मेरे अपने मन के अंदर किसी भी मात्रा में है क्या? इन भावनाओं, इन नेगेटिव विचारों से मैंने अपने मन को डेकोरेट किया है, और अगर मैंने अपने मन के अंदर इन भावनाओं को रखा है दोस्तों, तो मेरा मन नहीं, मेरा मन एक डस्टबिन बनकर रह जाता है, एक नेगेटिव बॉक्स बनकर रहता है। दोस्तों, क्या आप अपने मन के अंदर इन नेगेटिव भावनाओं को रखना चाहते हैं? आप सोचिए, क्या जीवन के अंदर क्रोध नेचुरल है? क्या जीवन के अंदर एक दूसरे को प्यार से एक्सेप्ट, एक दूसरे को सुख देना, शांति देना, लव हमारा नेचुरल इमोशन है? अपने आप से पूछिए। हम चाहे कितने भी शब्दों का इस्तेमाल करें, कितने भी 10 पॉइंट एजेंडा होकर हम मैनेजमेंट मॉड्यूल्स बनाएं दोस्तों, लेकिन जब तक मन की वाइब्रेशंस, मन की भावनाएं नहीं परिवर्तित होंगी, हम एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते। आप लव एंड लॉ का बैलेंस रखें, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट में, अपने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने कोऑर्डिनेट्स के लव एंड लॉ का बैलेंस रखता हूं। कई बार मुझे टफ भी होना पड़ता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उन भावनाओं को साथ रोज कैरी करना ये गलत है। उसको अपने वृत्ति, अपने मन में सदा के लिए धारण कर लेना कि वो व्यक्ति खराब है, ये एटीट्यूड, ये बहुत। इसलिए अपने मन को प्यार, अपने मन को एक्सेप्टेंस, कंपैशन, करुणा, अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन दोस्तों, अडेप्टेबिलिटी के साथ, एमिकेबिलिटी के साथ, इन भावनाओं को अपने मन में धारण करो। जितना शक्तिशाली, जितना पावरफुल, जितना सुंदर मन अपने जीवन में रचना करेंगे दोस्तों, उतना श्रेष्ठ आपका मन बनता जाएगा, उतना पावरफुल आपका जीवन बनता जाएगा। तो आज हम सब रोज रात को, यदि किसी व्यक्ति ने हमको कुछ बुरा, किसी व्यक्ति ने हमको कुछ कहा,
तो रोज अपने मन की क्लीनिंग एक्टिविटी कर कर रिलैक्स, रोज अपने मन को रोज क्लीन करिए। किसी ने कहा भी है कि जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। दोस्तों, कभी कभी मिस्टेक्स होती हैं, सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, और अगर हुआ है तो उस गलती को उनको बताकर प्यार से मॉडिफाई करके अपनी वाइब्रेशंस को नेगेटिव मत बनाएं, अपनी वाइब्रेशंस को सकारात्मक रखना, पॉजिटिव रखना। दोस्तों, ये बहुत बहुत आवश्यक है। ये समय है, ये ऐसा समय है जब हम एक दूसरे के लिए ग्रजेस को होल्ड ना करें, एक दूसरे के लिए मन के अंदर नेगेटिव भावनाओं को होल्ड ना करें दोस्तों, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट दें, एक दूसरे को हाथ दें, और हाथ देकर, संकल्पों का हाथ देकर उनको ऊपर उठाएं, उनको ऊंचा उठाएं, उनको श्रेष्ठ बनाएं। यही श्रेष्ठता, यही पावर, यही शक्ति हमारे जीवन में सुंदर संसार का निर्माण। दोस्तों, तो आपने समझा कि परिवर्तन यदि करना है तो परिवर्तन हमारे स्वयं के द्वारा होगा, बाहर परिवर्तन नहीं हो सकता। ये फर्स्ट शिक्षा है। सेकंड मॉड्यूल जो हमको समझना होगा कि एवरीथिंग दैट हैज टू बी चेंज्ड, इट इज ऑल अबाउट अवर माइंड। जब मेरा मन परिवर्तित होता है, मेरे संकल्प परिवर्तित होते हैं, तो मेरा जीवन स्वतः ही परिवर्तित होता है। तीसरी बात दोस्तों हमने समझी कि हमारा जीवन हमारे दृष्टिकोण का कॉन्सिक्वेंस है। जब मेरे जीवन के अंदर मेरा दृष्टिकोण पॉजिटिव और सकारात्मक है, तो मेरा दृष्टिकोण बदलने से मेरा जीवन सदा सदा के लिए परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, चौथी बात हमने कितनी सुंदर समझी कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई हमको देखनी है, पॉजिटिविटी देखनी है। चाहे कोई कितना भी खराब व्यक्तित्व हो, लेकिन उसकी खराबी के अंदर भी उसका गुण, उसको हमें गुण ग्राहक बनना है। उस पॉजिटिविटी को अडैप्ट करते हुए, लीडरशिप स्किल्स को अडैप्ट करते हुए हमें उस व्यक्ति को, उसके जीवन को भी परिवर्तित करना है, और अपने इंस्टीट्यूशन के भी उसको एसेट बनाना है। दोस्तों, फिफ्थ बात हमने देखी कि अपने मन, अपने संकल्पों को, अपने जीवन के अंदर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन को भी शक्तिशाली भोजन बनाकर हमको ग्रहण करना। और दोस्तों, पांचवी बात हमने देखी कि जैसे शरीर को अच्छा भोजन देते हैं, उसी प्रकार डिटॉक्स करते हुए अपने संकल्पों को भी अपना बहुत पावरफुल बनाना है। डिजिटल अप्लायंसेस से हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि एम आई द मास्टर और माय मोबाइल इज द मास्टर। ये देखना, ये चेक करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सिक्स्थ बात हमने देखी कि जीवन के अंदर यदि हमको परिवर्तन लाना है तो ओवर थिंकिंग को, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, इसको हमें समाप्त करना होगा। वी हैव टू लेट गो ऑफ दिस पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। छोटी बात को छोटा ही रहने दो, उसको बात करके, चिंतन करके, सोच सोचकर बहुत बड़ा मत करिए। ऐसा सोचकर कहीं ना कहीं हमारा मन दुखी और अशांत हो जाता है दोस्त। और इसी प्रकार सातवीं बात हमने देखी कि कभी भी किसी व्यक्ति को ओवर गिल्ट करना, ये देखना, उसकी नेगेटिविटीज को देखना, ये उसकी शक्ति को क्षीण करता है और उसकी परफॉर्मेंस लेवल को सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रॉय करता है। और आठवीं बात दोस्तों जो बहुत सुंदर रूप से हमने बताई कि अपने मन को रोज क्लीन करो। A great mind is one that is happy, stable and successful and forgiving mind. दोस्तों, शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसका जिसमें शक्ति मिलेगी। जितना जितना क्षमा करने की शक्ति हमारे अंदर होगी, ये हमारी श्रेष्ठता को दिखाता है। क्षमा करने का व्यक्तित्व कमजोर लोगों के बस की बात नहीं है दोस्तों, ये एक पावरफुल श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है। और दोस्तों, इन सब बातों को जीवन में अपनाने के लिए कुछ पल जीवन के अंदर मेडिटेशन और योग के लिए निकालना बहुत आवश्यक है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं, अपने मोबाइल के साथ साथ कभी कभी पावर बैंक को भी कैरी करोगे दोस्तों, इसी प्रकार अपने जीवन के अंदर, अपने लाइफ के अंदर अपने मन रूपी मोबाइल को भी चार्ज करना बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत। तो आज ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेडिटेशन हमारे जीवन की सबसे सुंदर शक्ति है। जब भी हम यथार्थ रूप से मेडिटेट करते हैं तो हमारे संकल्प जो है, मेडिटेशन अर्थात अपने संकल्पों को स्लो करना, अपने संकल्पों को कम करना। और जब भी हमारे संकल्प स्लो और कम होते हैं तो हमारे संकल्पों की शक्ति, पावर बढ़ जाती है, उनकी शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। हमारे जीवन का एक एक वाक्य दोस्तों वो वाक्य नहीं रहता, वो महावाक्य बन जाता है। तो आज स्वयं अपने जीवन में इस चीज को समझ कर रखें कि मेडिटेशन अर्थात अपने ओरिजिनल सेल्फ, अपने ओरिजिनल फोल्डर को पावरफुल एनर्जी से चार्ज।
ये पावरफुल ओरिजिनल फोल्डर्स जानते हैं क्या है? ये पावरफुल ओरिजिनल फोल्डर्स जो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी गॉड स्पॉट, हमारी लाइट, हमारी एनर्जी, हमारी आत्मा, जिसके हमारे निजी गुण है, हमारे फोल्डर्स हैं। ये फोल्डर्स हैं प्योरिटी, परमात्मा की प्योरिटी, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की दी हुई खुशी, प्यार, आनंद और शांति। ये हमारे ओरिजिनल फोल्डर्स है, जिन गुणों के द्वारा हमें अपने मन, अपने जीवन को डेकोरेट करना। आज हमने शांति को भुला के, आप देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में कितनी अफरा तफरी, अशांति का माहौल। जिस प्यार की हम बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, आज उसको भी कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से खो चुके हैं। आज लोग नॉलेज और पावर का भी, ज्ञान का भी दुरुपयोग करते हैं, और पवित्रता तो सब लोग अपने जीवन में कंप्लीट रूप से दोस्तों भूल चुके हैं। आज बहुत आवश्यक है कहीं ना कहीं अपने जीवन में इन्हीं गुणों को दोबारा धारण करना, दोबारा शक्ति रूप धारण करना। दोस्तों, स्पेस देना अर्थात अपने जीवन के अंदर क्लैरिटी बढ़ाना। मेडिटेशन हमारे जीवन के अंदर संयम लाना, मेडिटेशन हमारे जीवन के अंदर सुकून और आराम लाना। जब भी हम मेडिटेट करते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर हमको स्टेबिलिटी देती है। आज आप देखिए, मेडिटेशन अर्थात रिकनेक्टिंग बेटर नॉट विद द वर्ल्ड बट फर्स्ट विद योर ओन सेल्फ। जब हम स्वयं के साथ इस शक्ति को जनरेट करते हैं, तभी हम इस शक्ति का बाहर उपयोग कर सकते हैं। आज हम सब लोग केवल अपने लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हैं। हम लोग कहते हैं हम तो कर्म योगी है, हम डिसाइसिव हैं, हम लॉजिकल हैं, हम एक्यूरेट हैं, हम एनालिटिकल हैं, हम रीजनिंग है। ये सब बातें सही हैं, हम रियलिस्टिक है, सब बातें सही हैं दोस्तों, लेकिन बहुत आवश्यक है इन सब बातों के साथ साथ अपने राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट। और ये राइट ब्रेन है शांत, क्रिएटिव, पैशनेट, लविंग, इंट्यूटिव एंड पोएटिक। दोस्तों, मेडिटेशन की शक्ति हमारे जीवन के अंदर इन सब कंप्लीट होलिस्टिक होलिस्टिकली ब्रेन को एक्टिवेट करती है, और यही सिंक्रनी दोनों के बीच में हमारे जीवन में हमको सुंदर व्यक्तित्व क्रिएट करती है। आज आप साइंस को भी समझना चाहेंगे तो आप देखिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्रेन वेव पैटर्न है, चाहे वो कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, वो टिपिकली अनबैलेंस्ड ब्रेन वेव पैटर्न which is prone to anxiety, depression and poor mental health। देखिए, दोनों हेमिस्फीयर्स कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड। लेकिन जब हम केवल 15 मिनट मेडिटेशन का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो ये 15 मिनट हमारे जीवन के अंदर सिंक्रोनाइजेशन को आरंभ करते हैं। 25 मिनट्स में आप देखेंगे दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स एक दूसरे से हार्मोनाइज। ऐसा फंक्शनिंग सिस्टम मोर इंटीग्रेटेड और परफॉर्मिंग है, ऑप्टिमाइज्ड है for our emotional well-being and our mental। This is the power that meditation। दोस्तों, जीवन में कुछ भी आप क्रिएट करना चाहें, उस सब को क्रिएट करने की शक्ति बाहर नहीं, उन सब को क्रिएट करने की शक्ति मेरे मन के अंदर, संकल्पों के अंदर। संकल्प जब मेरा श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, तो मेरा जीवन भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली होगा। इट डजंट मैटर कि 100 लोग इट डजंट मैटर कि 100 लोग मुझे सपोर्ट करें ना करें, लेकिन मेरा स्वयं का व्यक्तित्व, मेरा स्वयं का जीवन ही कंप्लीट मेरे जीवन और संसार को क्रिएट करता है। दोस्तों, अंत में एक बात सुनाकर वाणी को विराम दूंगा कि एक बारी बहुत सारे लोग एक महात्मा के पास गए, और महात्मा के पास जाकर बोले कि महात्मा जी कर लेना, कोऑर्डिनेट कर लेना, लेके छोड़ना देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चला जाए। मैंने मारुति करा, मैंने मारुति मतलब आती काटे। एक बारी बहुत सारे लोग एक महात्मा के पास गए, और महात्मा के पास बोले कि हमें आज जीवन के अंदर समय भी नहीं मिलता है, और समय नहीं मिलता है परमात्मा को याद करने का, तो हम कैसे परमात्मा को याद। उन्होंने कहा, तुम ठीक बोलते हो, अपने मरने से केवल एक दिन पहले ही परमात्मा को याद करना वही बहुत। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि ठीक है महात्मा जी, ये तो बहुत बढ़िया बात। और फिर वो लोग जाने लगे, पर उनमें से एक व्यक्ति वापस मुड़ा और बोला कि पर हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने मुस्कुराते हुए बोला कि फिर तुम आज याद करो, क्योंकि कल का किसी को भी पता नहीं है। तो दोस्तों, यदि परिवर्तन लाना है, आपने इतनी सारी बातें सब लोगों से सुनी हुई, तो उस परिवर्तन की अग्नि को प्रज्वलित अभी आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा। शाम को भी नहीं, अभी
और इन सब 6-7 बातों को केवल एक दिन के लिए बहुत प्यार, बहुत आनंद से ही अपने जीवन में एक दिन के लिए आनंद करें, एक दिन के लिए उसको अनुभव करें। और एक दिन का ये अनुभव जो है आपके जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देगा। प्रेशर्स आएंगे, ईमेल्स आएंगी, फोन्स आएंगे, फाइलें होंगे, डजंट मैटर, सब कार्य हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इस कार्य को करते हुए भी जीवन के अंदर सुख और शांति को लाना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम कुछ पल बहुत प्यार से अपने मेडिटेटिव माइंड को लेते हुए शांति की कुछ अनुभूति करते हैं। सब बातों को और संकल्पों को विराम दें, आंखों को खुली रखें। अपना संपूर्ण ध्यान बाहर के लोगों और परिस्थितियों से अपने मन की ओर लेकर चलें। देखिए अपने मन को, किस प्रकार की भावनाएं और संकल्प मेरे मन में। कभी कभी क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, क्या ये नेगेटिव भावनाएं मेरे जीवन में, ये संकल्प मेरे मन को डेकोरेट करते हैं। आज अपने मन की हम सब सफाई करते हैं। अनुभव करें इस शरीर के अंदर विद्यमान मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। अपने एक एक संकल्प को परमात्मिक प्योरिटी, परमात्मिक शांति, परमात्मिक खुशी से परिपूर्ण चार्ज करें। इन संकल्पों को अपने शरीर के एक एक सेल रेडिएट होने दें। शरीर को बहुत हल्का महसूस करें, कोई भी भान नहीं। मेरे संकल्प श्रेष्ठ, शांत और परमात्मिक प्यार से परिपूर्ण। ये एक पावरफुल आभा मंडल मेरे मन के चारों तरफ अनुभव करें। ये परमात्मिक प्योरिटी, परमात्मिक शांति अपने संबंधों में, अपने परिवार, अपने प्रोफेशनल, शक्ति मेरे चारों तरफ एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। मैं बहुत शांत और शक्तिशाली आत्मा, बहुत बहुत शांत। मेरा संकल्प बहुत श्रेष्ठ, शक्तिशाली। इसी स्थिति में रहते हुए इसी ऊर्जा को अपने मन में भागने और अनुभव करें। इस असीमित शक्ति को
दोस्तों, एक बात तो हमको समझनी है कि कोई भी चीज को यदि हमें जीवन में आरंभ करें तो उसका आरंभ, उसका परिवर्तन स्वयं के मन से हो। इफ यू वांट टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ, द सॉल्यूशन लाइज विद मी। बहुत आवश्यक है। तो परिवर्तन की इस वेला में आज मैं आप सबको केवल यही संदेश देकर कि विश्व परिवर्तन द्वारा स्व परिवर्तन कभी नहीं होता, लेकिन स्व परिवर्तन द्वारा ही विश्व परिवर्तन हो जाए। विश्व परिवर्तन, if we change, the world changes. When we are able to manage ourselves perfectly, everything outside will be managed always perfectly. Thank you and Om Shanti. Thank you so much, Dr. Gupta. And I think the peace that I can see in this room, and I'm sure that people can also feel that wherever they are, it shouldn't be disturbed with too much or too many words. And therefore, people might have questions for you on your own practice as to on your own meditative practices. So would you be okay taking questions from our participants? Please go ahead. I'm here. Please go ahead. जी, तो किसी का कोई सवाल हो अगर स्पेशली इस आई एम श्योर दैट डॉक्टर गुप्ता इज प्रोफेशनली very busy as many of us are also, but then how does he balance and where does he get the time to practice, say, Raja Yoga, for example? Can we begin with that maybe? So basically देखिए, ये बहुत जीवन के अंदर एक ट्रुथ कि बैलेंस इज द की, और इस बिजी वर्ड को अपने साथ एसोसिएट मत होना। That is again that problem. You never say that I am a busy person or a busy. You might be having a very demanding schedule. It doesn't matter. लेकिन what is most important is balance is always created inside. यदि आपको आज किसी चीज की जरूरत महसूस हो, उसके अलावा रतन कह रहे और I'm so sorry for this. Someone, I think we need to reiterate our some of the advisory. Anyway, yes. We can't hear you for some reason. Oh, I'm so sorry. I've also muted you. I'm so sorry. I was muting everyone. Yeah. किसी भी प्रकार के बैलेंस को क्रिएट करना है तो उस बैलेंस को क्रिएट करने का सबसे सुंदर तरीका स्वयं के मन के, और मानव जीवन का स्वभाव है वो बहुत ही स्वार्थी स्वभाव, जहां पर उसको बेनिफिट देखेगा वहीं पर ही जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों, इस प्रकार राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा जब हम अपने जीवन में संयम लाते हैं, बैलेंस लाते हैं, खुशी लाते हैं, तो एवरीथिंग इन आवर लाइफ रन स्मूथली एंड परफेक्ट। To become ordinary to extraordinary, that little extra is nothing but the vibrations and the energy of your thoughts that आज हमने पूरे समय अपने जीवन में कार्य करते हुए 24 घंटे में से ऑलमोस्ट 16-17 घंटे अपने वर्क, अपने लाइफ, अपने प्रोफेशनल टाइम। लेकिन मेरा आप सब लोगों से जो आज सुन रहे हैं, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है जूम पर या वहां पर बैठा है, आप लोगों से केवल मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपने आप की केयर के लिए समय दिया? आप पूछिए अपने आप से, आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर ओन माइंड? जो चीज लगातार चल रही है वो थक जाएगी, वो कभी ना कभी परेशान होकर रुक जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर ये कप खाली है तो मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मेरा मन स्वयं शक्तिशाली और पावरफुल होगा उन गुणों से, तब मैं किसी व्यक्ति को कुछ एनर्जी दे पाऊँ। और आज खाली मन की निशानी है हमारे जीवन में क्रोध, इरिटेशन, एंगर, हेट्रेड, जेलेसी, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट, इन सब का आना। दीज आर द इंडिकेटर्स। अपने आप से पूछो, इफ यू आर अबंडेंट विद लव एंड जॉय, इफ यू आर बैलेंस्ड, then where will all this anger come from? It is not needed. You will automatically be generating loads and loads of love and happiness in your life. And that is what is important, that needs to be created in your life. So always remember that balance is created here. Time और समय ऑटोमेटिकली निकलता है जहां मुझे किसी चीज की इच्छा होती है। My typical day starts at 3:15 a.m. in the morning. I generally go off to sleep at around about 10:30 or 11 in the night. So this is evening. तो नींद की क्वालिटी and food की क्वालिटी is relatively very good. So generally योगी जीवन के अंदर 4 to 4.5, 5 hours sleep is more than sufficient to maintain your own schedule. That's very interesting, the last point that you said, and I'll go to other people have questions, but I am feeling a little selfish, so if I can quickly ask you this. आपने कहा 4 से 5 घंटे जो है वो नींद काफी है,
तो क्या तो जीवन के अंदर दो चीजों को आप जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, और जिनकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी नहीं। पहला है खाना। अगर आप भोजन जितना मर्जी खाते रहे लेकिन वो क्वालिटी भोजन नहीं है तो वो केवल वेट बढ़ाने के काम आएगा, आपको न्यूट्रिशन नहीं। यू विल सी मेनी ओबीज पीपल हु आर नॉट मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। इसी प्रकार से दूसरी चीज जो है वो हमारी नींद। आप में से कई लोगों को अनुभव भी होगा कि आप 10 घंटे भी सो जाएंगे, 10 घंटे बाद उठकर कहेंगे कि आज मुझे थकान सी लग रही है, मुझे आनंद नहीं आ रहा। व्हाई? बिकॉज आप उस समय में जब आप सो रहे थे अपने आप से पूछिए कि आपका मन भी सो रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, शरीर से भी ज्यादा मन को सुलाना आवश्यक। तो इसलिए योगी जीवन जो हमारा होता है वहां हमारा शरीर और मन सिंक्रनी में काम करने के कारण 2 आवर्स के अंदर एक साइकिल पूरी होती है, जो हमारे जीवन को 4 घंटा चार्ज करती है। 2 साइकिल 4 से 6 घंटे के अंदर हमारे बॉडी को कंप्लीटली 8 आवर्स के लिए शक्ति मिल जाती है। इसलिए क्वालिटी ऑफ स्लीप पर बहुत ध्यान दीजिए। रात को सोते हुए मोबाइल करते हुए सोना, गाने सुनते हुए सोना, टेलीविजन करते हुए सोना, तामसिक भोजन खाते हुए सोना, इधर उधर व्हाट्सएप करते हुए सोना, नींद कैसे अच्छी आएगी? योर थॉट्स विल कंटिन्यूअसली बी मिक्स्ड इन दैट। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, नींद की क्वालिटी को पावरफुल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, क्वालिटी नींद दीजिए। इसलिए आप उसको जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना घटाना चाहे उसको घटा सकते हैं। जी, ओके। दीपक जी, आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज, इफ यू आर देयर। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Sir, thank you so much for a fantastic session. We really appreciate it. Sir, I have 2 questions. One is that, I have noticed that, because of too much online, I would say, the ability to retain data or the ability to retain whatever have been, taught to you or communicated to you has gone, far below. So this is called very beautiful point. कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों से हम लोग 1 घंटे का सेशन डिजिटल डिटॉक्स पर रखेंगे। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन ऑन डिजिटल डिटॉक्स, फैंटास्टिक सेशन, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस आंसर होंगे। आई विल टेक दिस पर्टिकुलर सेशन नाउ, पर्टिकुलर टॉपिक नाउ। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन। दिस इज कॉल्ड CPA। कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन में ये होता है कि कंटिन्यूअसली हम जब कार्य करेंगे, आप एक कार्य कर रहे हैं, एक कार्य आपने पूरा नहीं किया, दूसरे कार्य की तरफ चले जाएंगे, दूसरा कार्य पूरा नहीं किया, तीसरे कार्य की तरफ चले जाएंगे, तीसरा कार्य नहीं करेंगे, चौथे कार्य की तरफ चले जाएंगे। जब भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर स्विच करते हैं, वी हैव टू पे व्हाट इज कॉल्ड एज द स्विचिंग पेनल्टी। और ग्लोरिया स्टीफन की जो बहुत सुंदर स्टडी आई है, ग्लोरिया मार्क स्टीफन की, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उन्होंने दिखाया कि जब व्यक्ति एक कार्य को छोड़कर दूसरे पर जाता है और दोबारा अपने कार्य पर पुनः वापस आता है, तो उस टाइम लैग के अंदर उसको करीब 23 मिनट लगते हैं दोबारा फोकस प्रॉपर बनाने। तो मल्टीटास्किंग मेनिया और कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन इज टर्निंग आउट टू बी अ मोस्ट नेगेटिव। तो आप कार्य कर रहे हैं, थोड़ी देर मोबाइल पे देखेंगे, बात करेंगे, फिर आप कार्य पर चले जाएंगे, फिर आप थोड़ी देर मोबाइल को देखेंगे, फिर कार्य पर चले जाएंगे, एंड दिस इज गोइंग टू कंप्लीटली डिस्टर्ब यू। इसलिए बहुत आवश्यक है, इसके लिए आप लोग पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करें। पोमोडोरो टेक्निक वाज एन इटालियन टेक्निक, जिसमें वो क्या करते हैं कि 25 मिनट एक कार्य पर बिल्कुल स्थिर होकर करते हैं, और 25 मिनट के बाद 5 मिनट कहते हैं मैं मोबाइल या जो भी कार्य करना चाहता हूं अपने आप को रिवॉर्ड दें। तो 25 मिनट आप स्टेबल होकर कार्य करेंगे, 5 मिनट आप अपने मोबाइल या जो भी कार्य करने चेक कर सकते हैं। 2 बारी ऐसे करेंगे और तीसरी बारी आप 25 मिनट करने के बाद 15 मिनट की। तो इस टेक्निक से आपके मन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी और आप स्विचिंग को बंद करेंगे और पेनल्टी कम जाएगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका अटेंशन बढ़ेगा, आपका टाइम लैग भी बढ़ेगा, आपका मन भी स्टेबल रहेगा। इसके बारे में डिटेल में हम कभी और चर्चा करेंगे क्योंकि आज का स्कोप नहीं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिजिटल वर्ल्ड इज टेकिंग अ सीरियस कॉल। मैं देखता हूं कई लोग अभी भी लगे हुए मोबाइल पर, अभी भी हाथ में करके करे जा रहे हैं, बिकॉज वी आर सो मच एडिक्टेड टू मोबाइल। हमको 2 मिनट का भी चैन नहीं है, राइट डूइंग थ्रू आउट द डे, कीप ऑन प्रेसिंग कंटिन्यूअसली मोबाइल। आज अपने आप से पूछिए, एम आई द मास्टर और माय मोबाइल इज द मास्टर? यू विल गेट द आंसर। So just one small question. So this is something I personally have seen, that there are softwares like Grammarly and other softwares. So honestly speaking, what has happened is that we're not remembering those spellings, and we know that the moment I write, if it's a wrong English, this will automatically correct. So somehow this has also become a trend, and these are more of personal choices. I personally इनकी डिटेल में ना जाके वो करें, बैलेंस इज द की। आई वुड नॉट बी गोइंग टू डिटेल क्योंकि किसी चीज को ब्लेम करना या वो करना मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन एवरीथिंग व्हेन यूज्ड जुडिशियसली बिकम एन एसेट।
and everything, if it is used injudiciously, will become a problem. The judicious use is very right. Okay. Thank you, sir. Next, anybody else? जी एक क्वेश्चन ले ले, फिर आपके पास आते हैं। सोम जी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर, जो लास्ट सेशन में जो आपने मेडिटेशन का उपदेश दिया, तो हमारा माइंड 1 मिनट के लिए, जो 1 सेकेंड्स के लिए जो मतलब कंसंट्रेट हुआ, उससे ऐसा लग रहा था कि आप हमें हिप्नोटाइज कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा था क्योंकि शांति मिल रही थी और पॉजिटिविटी, जो एक जगह हमारा माइंड आ चुका था, चाहे कुछ सेकंड के लिए, तो अच्छा लगा सर वो। देखिए, हिप्नोसिस इज नॉट द राइट वर्ड, मेडिटेशन इज सेल्फ क्रिएशन। अगर आपको मैं कहूंगा तो मेडिटेशन के अंदर आप अपने विचारों को खुद सिंक्रोनाइज करके उनको एक दिशा निर्देश देते। हिप्नोसिस में केवल मैं आपके लिए करूंगा, आपका कोई रोल नहीं रहेगा। तो मेडिटेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। उस एक्टिव प्रोसेस में आप अपने मन को, संकल्पों को बहुत शक्तिशाली और शांत बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। और इस प्रैक्टिस को केवल 2-2, 5-5 मिनट आप रोज करें, और ये आपको इतनी एनर्जी देगा जो आपकी लाइफ बहुत पावरफुल और वंडरफुल बन जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने मन को रोज कुछ ना कुछ समय। मैं करता हूँ सर, योगा करता हूँ। थैंक यू सर। जी सर, यहाँ पे हमारे साथ संजय जी हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सवाल में सर मैं कुछ बात करना। जी, सर नमस्कार सर, जय हिंद। सर, आपके पीछे जो सम्मोहन चक्र लगा हुआ है ना, जो आपके ठीक पीछे जो सम्मोहन चक्र लगा हुआ है, स्पाइरल जो भी है, पोटेरियम का वटेवर जो भी है, मच इफेक्टिव। हमारी हिंदू माइथोलॉजी भी ये कहती है, फॉरेन पैटर्न भी ऐसा है, यूएसए में, जैसा मैंने कभी स्कूल टाइम में सुना था, हमारा स्पाइरल का चक्र बना हुआ है फॉर कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एटसेट्रा। हमारे योगी पुरुष या धर्म गुरु या आम आदमी भी हनुमान जी का हमने सुना है, चालू भाषा में हनुमान जी के मंत्र को, यंत्र को सिद्ध करना, जो भी उनका ठीक जैसे आपके पीछे ये है, सेम इस तरीके से हो गया था, वो भी एक मेडिटेशन का बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, मैं हमेशा स्ट्रांगली मानता हूं कि चित्र और इन सब के अंदर जान नहीं होती। आप अपने जान अपने संकल्पों के द्वारा, अपनी वाइब्रेशंस, अपनी मान्यताओं के द्वारा, तो इन सबकी एनर्जीज की को सप्लीमेंट जब आप अपने संकल्पों के द्वारा करेंगे तो ये और फंक्शनल हो जाएगा। अगर आपका व्यक्तित्व ही नहीं है तो फोटो टांग के अगर सब कुछ एनर्जी चेंज होती है तो लोगों की किस्मत ही बदल जाए। तो ये एक लेवल तक बहुत अच्छी चीज है। डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आप देखिए मूल आधार परिवर्तन का और मैनेजमेंट, जहां जिस लेवल पर आप लोग बैठे हुए हैं, जहां आप लोगों को कितने लोगों का दिशा निर्देश, मार्गदर्शन करना, ऐसे समय पर स्वयं का परिवर्तन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Agreed. Thank you, sir. Thank you so much. If anything is not there, can I take leave? Thank you so much. और कुछ प्रश्न? जी किसी और? I don't think I can't see anymore. जी? No, there are no questions. Yes, and I understand you have you must be having other engagements. So क्या कह सकती हूँ, आपने थोड़े से जो भी हमारे साथ वक्त हमें मिल पाया आपके साथ, उसमें हमें अच्छा महसूस हुआ। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? एक अच्छा पॉजिटिव महसूस हुआ। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट टेक अवे एंड गुड थॉट्स विच लेट अस सी। जो संकल्प की आपने बात की, तो वो जो है हम कोशिश करेंगे। मैं पर्सनली आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ, सर्टनली दैट्स समथिंग, स्पेशली द डिजिटल डिटॉक्स, आई थिंक, and you know, anyway, I don't want to take more time by sharing my own experiences, but that's something, all those ideas that you mentioned about, I think are certainly for us to think about and work upon. So thank you so much for giving your time today and sharing your thoughts. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. To all the participants, especially क्या उपेंद्र पासवान जी हैं यहाँ पे? उपेंद्र पासवान जी, let me just search his name here. Okay, the पुष्पा जी, आप उस पे जरा एक बार टाइप करेंगे। उपेंद्र पासवान जी, आप हैं वहां पे? Just see if we have him in the list. Yes, he is there. उपेंद्र पासवान जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं, शायद उपेंद्र पासवान जी तो
है नहीं यहाँ पे। हाँ मैडम, हेलो जी उपेंद्र पासवान जी, आप यस मैम, यस मैम। आप कहाँ से जुड़े हुए हैं हम मैडम लोग? यूसीएमएस से। उपेंद्र पासवान जी, ऐसा एक से ज्यादा बार हुआ है कि आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। ये तो बिल्कुल समझ आने वाली बात है कि कभी कभी हो जाता है कि गलती से हमारा हाथ जो है वो हमारे मोबाइल डिवाइस पे लग जाता है और हमें पता नहीं, लेकिन पैरेलली आपका कुछ और ही वहां पे ठीक है। आई अंडरस्टैंड यू मस्ट बी हैविंग अदर थिंग्स, बट एटलीस्ट यू शुड मेक श्योर दैट यू आर नॉट डिस्टर्बिंग अदर्स इन दिस सेशन। ठीक, थैंक यू मैडम। ओके मैम जी, आप फ्यूचर में ध्यान रखेंगे मैडम। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद धन्यवाद। And since we have now today finished this session a little early, जी आप बंद कर लीजिए अपना माइक्रोफोन, मैं कर देती हूँ। Since we finished this session a little early, so that means we have our break today would be of course longer, and so we will see you. I don't think Akhilesh ji, कितने बजे हम दोबारा मिले? 4:30 or 4:15? अच्छा, तो ठीक है, हम जो एम कर रहे हैं वो 4:15 बजे के लिए एम कर रहे हैं। क्यों, लेट्स सी इफ आवर स्पीकर कैन बी हियर एट 4:15, तो ताकि हम जल्दी शुरू करें और समय से खत्म कर सके, सभी को घर जाना होता है। सो इसलिए जो है अभी हम वी आर ब्रेकिंग फॉर दिस रिसेस, and now hopefully we'll meet each other at 4:15. Is that okay? And I hope your presentation preparation is going well. I hope all of you are working together. अब आपकी आवाज चली जाएगी, आवाज नहीं जाना, आवाज नहीं जाना। So all right, okay then, 4:15 बजे मिलते हैं। Thank you.